Okay, so IUPAC nomenclature सीख रहे हैं आज हम. Now, a lot of it we have already discussed. मतलब इसमें हम अभी नया नहीं पढ़ेंगे, काफी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वेगली जब हम हाइड्रोकार्बन्स कर रहे थे, जब हम एल्कीन्स कर रहे थे, एल्कीन्स कर रहे थे. सो सबसे पहला टॉपिक जो इसमें है, पहली बात आईयूपीएसी है क्या. अगर सी द थिंग इज कि all of all of the things in chemistry requires formal names. Now in different places people might call it differently. ठीक है. So to have a standardized name and have a standardized structure for naming, कि अगर कोई कंपाउंड फॉर्म हुआ तो उसका नाम हम कैसे रखेंगे, अगर उसके कितने बॉन्ड्स है उसके बेसिस पे क्या नाम रखेंगे, और स्पेशलाइज नाम हो सबके सबके. सो दैट इज द रीजन कि हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं. Now, one more thing that a lot of people think कि IUPAC nomenclature is important for uniqueness, कि हर एक नाम यूनिक होगा, कि उसके जैसा कोई भी दो नहीं होंगे, which is true for structural isomers. कि मतलब अगर कोई दो आइसोमर्स है तो IUPAC nomenclature में वो दोनों अलग अलग नाम के होंगे. स्ट्रक्चरल आइसोमर मीनिंग कि हमने डिस्कस करा था ना, कैसे कोई स्ट्रेट चेन में कोई ब्रांच हो, उन पे डिपेंडिंग उनका नाम बदल जाएगा. But it still doesn't lead to uniqueness, and that is something we study in even senior classes. Sometimes you can have isomers. ठीक है, you can have isomers which are not because of the fact कि उनका उनका same IUPAC name होगा, लेकिन वो still isomers होंगे because of some discrepancies and angles and stuff. And so again, do not confuse this with the fact कि IUPAC nomenclature means कि distinct है. अब इसके अलावा कोई भी दो एलिमेंट्स, कोई भी दो स्ट्रक्चर्स का सेम आईयूपीएसी नेम नहीं हो सकता. हाँ, हमारी क्लास में नहीं हो सकता. सो वी कैन टेक एज, अगर हमें डिस्टिंक्ट आइसोमर्स बनाने ना, कभी क्या आइडेंटिफाई करना है कि दो जो सब कंपाउंड दिए हमें वो डिफरेंट है या नहीं है, even with the same chemical formula. So we can just use the IUPAC nomenclature. That's it works. Yes, it definitely works in our case. Okay. Now, what is this? This is the International Union of Pure and Applied Chemistry, and it was set up in 1958. Now, this is something just for the general awareness. This is not necessarily ever coming in your exam. What is the full form and stuff? But what is it named and how it works is definitely what will come in your exam. So now, depending on kitne carbon atoms hai, you can have the name meth, eth, prop, bute, pent, hex, hep, oct, non, and dec. I have given you up till 10, even though आपके कोर्स में majoritarily 6 से ज्यादा की कभी मैंने देखे नहीं आते हुए, बहुत बहुत रेयरली मैंने देखा आते हुए, but you should just know up till 10. Obviously you have more, but you don't need to learn their names. I mean, I'm just saying कि मतलब इतना अभी आपको करने की जरूरत नहीं है. It's like learning the Roman numerals, कि मतलब obviously first 10 is too less, but we have to learn all of them, and but the names just keep on changing and changing and changing. It is not like English. English के देखे तुमने numbers कितने simple है to learn. It's really really simple. If you really think about it, it's very simple. It's very simple. Once you learn from 1 to 100, once you learn from 1 to 100, actually from 1 to 9 and then 10, 10, 12 and all of that series. So you technically only have to remember 19 things and then you just know the whole number system, almost the whole number system. Well, it doesn't work that way in chemistry. It doesn't work that way in Roman numerals. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें याद होगा कि हम 100 को C से डिनोट करते हैं, then XIV and a lot of messy things, because you have to understand not everyone was using numbers. अभी का current logic उस टाइम का logic जरूरी नहीं है हो. For example, a lot of people might not understand कि हमारे months के नाम क्यों रखे गए. It's quite funny कि हमारे months के नाम कैसे रखे गए, but it is on the basis of that year's cultural relevance and easy, मतलब कितना easier याद रखना. And a lot of times people name things not because of the fact that it is easy to remember, but it signifies some things. Okay. We will not be able to understand it later on. We will not be able to understand it later on. For example, अभी जो हम short forms बनाते हैं, कि अगर मैंने कोई particular chapter है, जैसे let's say you have AOI, application of AOT, application of trigonometry. Now AOI is no short form. AOT is no short form. I mean, for some anime people, they want to be Attack on Titans or something like that. You have to understand the short forms that we make are not necessarily absolute. So the same goes with chemistry. कि later on लोगों को समझ आया था जरूरी थोड़ी है.
दूसरे लैंग्वेज में लोगों को समझ ऐसा जरूरी थोड़ी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स जब वो फाइंड होगा, जब वो नेम करा जाएगा, उसने मे बी why is it difficult to pronounce a certain thing, certain elements, certain names, because they are not originated from India. So we have to learn accent sometimes कि क्यों अजीब अजीब से मतलब क्रोसॉन्ट दिखने वाला शब्द क्रोसॉन बोला है पे हम क्यों, मतलब I don't know, but the thing is it's a French thing. So I mean we do not even have, तो कहते हैं ना apostrophe over r, मतलब whatever, मतलब हम लेटर्स के ऊपर ऐसे अजीब से सिंबल्स नहीं लगा रहे to change its pronunciation. And a language like Chinese, I'll say, because you'll understand Mandarin बोलूंगा तो तुम पता नहीं क्या सोचो, तो हाँ, very good, you're intelligent, सब नहीं होते. So so if I talk about Chinese, you have to understand the way they speak a particular word will change its meaning, the way they speak the word. And you have to understand that someone might be very good at written Chinese, but very bad, and majority people are very bad at spoken Chinese if they are not really Chinese, because we just don't understand their accent, their syllables, and how they speak. So that is what I talk about when we talk about chemistry and nomenclature in chemistry. This is a systematic approach. Now, this doesn't have any cultural relevance or something. This is just a systematic approach that you will see throughout chemistry. This IUPAC nomenclature is worldwide accepted. अगर तुम यूएस में पढ़ाई करने जाओ अपनी कंटिन्यू, या यूके में कहीं भी, everyone will be following the same nomenclature. And I like this about science, कि no matter where you are from, which country you study in, developed, developing, or as basic as it can be, all of us are learning the exact same thing. It doesn't work that way. It's different subjects. For example, subjects like if you want to accountancy is a little different from different countries. So you have to understand a lot of things are there in the nomenclature, and this the science we study is exact science. So meaning we can use this throughout. Okay, now that we know this, we also know one of the other things जो हमने डिस्कस करा था कि अगर सिंगल बॉन्ड हो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन में और वो सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन से बना हो, तो हम इस मिथेन के आगे मेथ के आगे ए लगा देते हैं. अगर अनसैचुरेटेड हो तो डिपेंडिंग ऑन वो डबल बॉन्ड है तो ENE, अगर अनसैचुरेटेड एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE आ जाता है. For example, the first one we see here is, very, very clearly, we don't have to discuss this even, this is propane. And it is propane. The next one is butane. Now, I know you might not know the common names, and which defeats the purpose of सभी common कैसे हुआ जब हमें ही नहीं पता. हमें butane पता है, हमें N butane तो हमें नहीं पता. But understand, this is for chemists, not the chemists जिसके पास तुम दवाई लेने जाते हो. They are technically also chemists, but chemists, when I say, are the ones who are actually experimenting and stuff. So common name is the one they use around. I mean, the thing is, you will not be calling them maybe butane and by the scientific name a lot of times. So that is what it means, common name. Now you don't have to learn common names, you just have to learn understand how IUPAC nomenclature is formed. So, and अगर ब्रांच नहीं हो तो तुम्हें नेम करना बहुत इजीली आता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स ट्राई समवन आउट. विपुल बड़ा खुश दिख रहा है, विपुल से पूछते हैं. सो विपुल, इसका नाम बताइए. चल, तुझे परेशान नहीं करते, पहले बेसिक पूछते देता हूँ. अभी किसी को नहीं. Yeah, butene. So this is butene. Yes, this is butene. We have 4 carbon atoms, and we have uh, the rest of them. By the way, this chemical formula क्या होगा इसका? C4H8. C4H8, which stands with the formula that we studied, CnH2n. Okay. Now someone who wants Sarah, let's say. चाय बनाने तो दे. अब तुझे क्या पता मैं यहाँ पे एक और सी बना दूं, तो बनाया जा रहा हूँ. पेशेंस. तूने केबीसी नहीं देखा? बता क्या हुआ है. क्या? ब्यूटाइन. Anyone disagreeing?
बोलो, बोल बोल। अच्छा ट्राई करना है इसके बाद, अच्छा अच्छा ठीक है। दिस करेक्ट। ब्यूटीन यू हैव C4H6. We'll discuss how branching works. Now the next one is let's say Govind, tu hi tell me. बता बेटा। क्या? 5 बने हैं इसमें? अच्छा हाँ, एक हटा देते हैं। माय बैड। ठीक है। बोलो। 20। So this is pentene. This is C5H10. So I think you people have a rough idea of how to make these. Doesn't matter. For us, currently we have not done isomerism, so this is just pentene. Now, out of the three, if you notice, this is the straight chain. अगर सिर्फ कार्बन के बनाऊं मैं, think about it. Think about just making for carbon. तो यहाँ पे कार्बन की क्या चेन है, देखो, है ना? यहाँ पे कार्बन की क्या चेन है? Now let's just stretch this out. I mean, let's just stretch this out. Stretching out मतलब समझते हो? हाँ मतलब exactly. This is a straight chain. Even if I bend it, मतलब it doesn't matter. So this is also straight. Third वाली में. So this is also straight. Exactly. मतलब तो that's the thing. You have to understand कि मतलब वो same चीज है. Yeah, you can think of it that way. You can think of it that way. But एक से ज्यादा नहीं, दो के साथ तो ये भी बना रहे हैं. दोनों साइड एक, तीन के साथ कह रहे हैं. बता रहा हूँ. अब ये देखो, जैसे इसमें ये सी सी सी, डबल बॉन्ड सी, single bond C, and you really can't stretch this out to have it in a single line. I mean, there is no way. So this is what is branched. I'll tell you how to make branched. Before that, we must learn how to name branched. So how to make branched is something we study in isomerism. But first, let's just learn to name them. कि अगर मैं तुम्हें दे दूं कोई branched, तो उनको नाम कैसे देते हैं? So सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, वो कैसे भी बनाओ, आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट की कार्बन की स्ट्रेट चेन ढूंढनी है कि सीधी की सीधी चेन लॉन्गेस्ट कौन सी है, वो ढूंढना है सबसे पहले. वंस यू डू दैट, यू हैव टू उसके बाद देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन पे जो, अगेन मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसी के नाम का डेरिवेटिव होगा जो भी आप कंपाउंड बनाओ. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, अभी जो हमने देखा, हमने इसे पेंटीन बनाया, लेकिन आईपीसी नॉमेनक्लेचर में हम इसे पेंटीन नहीं बुलाएंगे. हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करेंगे विच इज C4. और C4 क्या होता है? ब्यूट. सो बेसिकली ये ब्यूटेन का कोई पार्ट है, मतलब ये ब्यूटेन का कोई द समथिंग सम डेरिवेटिव ऑफ ब्यूटेन. सिंगल स्ट्रेट चेन देखेंगे. आईपीसी नॉमेनक्लेचर केयर्स फर्स्ट अबाउट द स्ट्रेट चेन एंड देन एड्स द नेम टू इट. नाउ यहाँ पे देखो, स्ट्रेट चेन में एक चीज एडेड है. क्या है? ये वाला ग्रुप. ये वाला ग्रुप क्या होता था, याद है तुम्हें? एल्काइल. यही मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में कराया था, एल्काइल ग्रुप है. सो बेसिकली दिस इज व्हाट इज नोन एज अल्का, मतलब ये कौन सा अल्काइल है? मिथाइल. सो दिस इज मिथाइल ब्यूटेन. सो मतलब ये ब्यूटीन है वैसे तो. दिस इज मिथाइल ब्यूटीन. मिथाइल इज एडेड टू ब्यूटीन एंड द प्लेस वेयर इट इज एडेड, the location at which it is added is the number. तो 2-methyl butene मतलब second place पे added है. Now you might say कि किस साइड से काउंटिंग स्टार्ट करें. हाँ, अगर let's say I start counting from here 1 2 3 and 4, or I start counting from here 1 2 3 and 4. So you always take the shortest part to it. So what's the shortest part to it? 3 or 2? 2. So that's why this will be
2-methyl, हाँ मतलब वही करूंगा, मतलब दिस इज टू कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ बट लेट्स जस्ट से थोड़ा सा इजी। ये जैसे 2-methyl ब्यूटीन है और डबल बॉन्ड कहीं और होगा तो फिर मुझे उस लोकेशन में ब्यूट 3-ईन करना पड़ेगा जिस लोकेशन पे डबल बॉन्ड है। बट द प्रॉब्लम है कि अगर डबल बॉन्ड ऊपर चला गया तो क्या होगा? वेल, धीरे धीरे विल मूव धीरे धीरे। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डेरिवेटिव किसका होगा, वो डेरिवेटिव मींस किसके डिफरेंट वर्जन्स होंगे, वो जो स्ट्रेट चेन है। You'll always start with the longest straight chain. Once you have identified this longest straight chain, that is going to be the name of the compound. ठीक है, उसके आगे मिथाइल लगेगा, इथाइल लगेगा या फिर प्रोपाइल लगेगा, जो भी लगेगा, बट वो स्ट्रेट चेन। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यही बोला अल्काइल ग्रुप लगा दो CH3C2H5 एंड देन लोएस्ट पॉसिबल नंबर। जब आप सीक्वेंस करोगे तो आपको लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे आना है, जो तीनों बातें मैंने अभी अभी आपको समझाई। ठीक है, एंड या that's all, मतलब that's all the कहानी है that is required. Now for example let's chemical formula same रहेगा। अब let's try and identify this one. अब इसमें देखो स्ट्रेट चेन कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है? एक कार्बन की 2 की चेन है, एक 3 की है, तो 3 की चेन है तो इसका नाम क्या आ जाएगा? प्रोपेन। नाउ मिथाइल प्रोपेन यहां से अगर लोकेशन डालना शुरू करे 1 2 3 और इस साइड से करे 1 2 3, दोनों साइड से देखो मिथाइल 2 पे ही आ रहा है, सो ये 2-methyl प्रोपेन होगा। यू गेटिंग द हैंग ऑफ इट? ये 2-methyl प्रोपेन है। एंड जो हम इसे अगर अगर इसे हम आईपीएसी नाम ना दे तो हमारे लिए क्या है वैसे? दिस इज ब्यूटेन। नाउ दैट यू अंडरस्टैंड क्या बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, आईपीएसी नॉमेनक्लेचर, नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इज 2-methyl प्रोपेन एन आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। कि सर प्रोपेन कैसा आइसोमर हो गया ब्यूटेन का? नो, इट्स टेक्निकली ब्यूटेन ओनली, इट्स जस्ट दैट इट्स नेम्ड दैट वे बिकॉज उसमें एक ब्रांच हो चुका है। तो कह रहा है ऊपर रख देंगे तो नाम बदल जाएगा, क्यों? ऊपर का नाम क्या रखेगा? दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट कि फर्क नहीं पड़ता। दिस इज एग्जैक्टली एन आइसोमर, और वो जो तू सोच रहा है अगर मैं ऊपर कर दूं वो भी सेम होगा। नहीं मतलब अगर कार्बन ऐसे कह रहे हो, मतलब यहाँ पे करा उन्होंने मिड में, आप यहाँ कह रहे हो isn't this a straight chain? इसमें हाँ, इसकी बात करते हैं, इसकी बात डिस्कस करते हैं। बीच वाले कार्बन के नीचे वाले कार्बन है, और अगर लोग सेम कार्बन ही ऊपर साइड लगा दे तो फिर हमारे को मिथाइल की जगह इथाइल लग जाएगा। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, क्योंकि हाँ करेंगे, अभी करेंगे, डोंट वरी, करेंगे। तो फिर इथाइल नहीं हो सकता। कोई लॉन्ग है, दोनों में से कोई भी लो। इथाइल होने के लिए उसको 2 कार्बन को स्ट्रेट चेन में होना पड़ेगा, और अगर ऊपर नीचे तो नॉट रियली लिंक्ड। द थिंग इज कि जो नाम ले लिया ना आपने, मैंने कहा प्रोपेन बुलाया, मैंने प्रोपेन निकाल लो, इससे क्या बचा? नहीं, यहाँ पे तो मिथाइल बताया ना, तो उसमें से क्या बचे? 2 मिथाइल बचे। समझ अंतर है, समझाऊंगा अभी, डोंट वरी। व्हेन वी मेक आइसोमर्स यू विल आल्सो अंडरस्टैंड। नाउ इसमें बताओ स्ट्रेट चेन कौन सी है? 2 स्ट्रेट चेन है तो 4 की स्ट्रेट चेन है, तो नाम लिख देते हैं आगे ब्यूटेन। नाउ ब्यूटेन के नाम में अब लोकेशन स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 1 2, रुक तो जाओ, 3 4, सबर बेटा सबर। ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हें कुछ नहीं समझ आया और मैंने छोड़ दिया हो? रिलैक्स, आई गॉट यू। तो यहाँ पे क्या होगा? 2, और 2 पे क्या है? मिथाइल है, थाइल है, मिथाइल है। मैं कहता हूँ स्ट्रेट चेन को गायब करो, क्या बचा? मिथाइल। तो दिस इज 2, सेकेंड लोकेशन पे मिथाइल ब्यूटेन। नाउ लेट्स मेक दिस, कि इसको शिफ्ट कर देता हूँ। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम नॉट गोइंग टू फिल कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन्स, बट तुम इसकी बात कर रहे हो, इसका नाम क्या होगा? एग्जैक्टली 1 2 3 4, 1 2 3 4, we always name from the shortest side, so this also becomes 2-methyl butane, which means all both of these are the same thing, and technically isomers do not change. There is no, ये न्यू आइसोमर नहीं बन जाता अगर आप ओरिएंटेशन बदल दो। इफ यू थिंक अबाउट इट, तुमने बस उसकी ओरिएंटेशन बदली है, मैं घुमा दिया उसको, एज लॉन्ग एज यू आर प्लेइंग अराउंड विद इट। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बना दूं सी 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 एंड देन यहाँ सी रख दूं, दिखने में बहुत अलग लग रहा है इससे, बट द सेम नेम, बिकॉज लॉन्गेस्ट चेन 4, सेकंड लोकेशन पे मिथाइल, सो इट्स अगेन द सेम।
डबल बॉन्ड नहीं खेलेंगे हम, तुम्हारी क्लास में है ही नहीं डबल बॉन्ड विद आइसोमर्स, क्योंकि वो रुला देगा तुम। समटाइम्स यू हैव टू मेक ऑल पॉसिबल आइसोमर्स। ब्यूटेन तक बनाने में बड़ा मजा आएगा, पेंटेन में बनाने में रोना आएगा, और हेक्सेन तो तुम्हें होमवर्क मिलेगा, क्योंकि घर पे नया नहीं करा रहा क्लास में। मान लो ये भी सेम है, इफ यू थिंक अबाउट इट, दिस इज ऑल्सो सेम, सी 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 सी, दिस इज ऑल्सो टेक्निकली दिस इज सेम। नहीं नहीं, हाँ, बिकॉज ये स्ट्रेट है। अच्छा, I know you might think that this is the straight one, but or this is the straight one, but आपको straight जितने आते जाए लूप में उतने सारे उठाने होते हैं। Its direction is irrelevant. That's to confuse you. It's not existing in nature like this. एंड इस वाले में अगर ये सी फर्स्ट या लास्ट सी के साथ कंबाइन होता है तो स्ट्रेट चेन मानी जाती है ब्रांच। नहीं, मैं डिस्कस करूंगा। अगेन अंडरस्टैंड, फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ टू नेम इट। अभी तुम कोशिश कर रहे हो और बनाने की। वी आर नॉट डिस्कसिंग आइसोमेरिज्म। मैं उसका पर्टिकुलर तरीका सिखाऊंगा तुम्हें जिससे कभी भी रेपिटेशन पॉसिबल ना हो। फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इट्स नेम इज। ये नेम समझ आया तुम्हें कि 2 मिथाइल ब्यूटेन है? प्रोपेन का पेंटेन पेंटेन का आइसोमेर है टेक्निकली। यस यस यस, सो दिस इज पेंटेन एंड इसका नाम नॉर्मल नेम होता है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन, सॉरी हाँ आइसोपेंटेन, फिर नियोपेंटेन भी होता है, बट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर्स आर बेटर टू रिमेंबर बिकॉज़ दे आर स्ट्रक्चर्ड। हमें पता है एग्जैक्टली वही नाम। प्यारे बच्चों, अगर फर्स्ट पे होता तो स्ट्रेट चेन होती। will happen, don't worry, will happen. I have picked the perfect chapter to take the entry for teaching you because this is a lot more mathematical than you think. You have to understand there are algorithms at play here. So the things you cannot do. Now take a look at this. Now what Sarah was asking कि एक straight chain है, अब इसमें straight chain दोनों ही है, किसी साइड से भी आइडेंटिफाई करो। मैं कहता हूँ ये ले लिया मैंने, तो नाम क्या रख दिया? प्रोपेन। अब इसका नाम लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3, लोकेशन। और ये चेन हटा दो, ये वाला पार्ट हटा दो, गायब कर दो, तो क्या बचे? 2 मिथाइल बचे। 2 मिथाइल बचे तो केमिस्ट्री को 2 लिखना तो आता ही नहीं है, तो वो क्या लिखेगा? 2, और सेकेंड भी क्या है? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। नाउ थिंग इसके सर 2,2 क्यों लिख रहे हैं? सिर्फ 2 क्यों नहीं लिख देते? अरे 2 है, दोनों की अलग लोकेशन है। लोकेशन 2 एंड 2 है, मतलब पहला भी 2 पे है, दूसरा भी 2 पे है। सर ऐसा थोड़ी होता है, एक कहीं और। तो समझ भी हो सकता है। एग्जैक्ट। अगर ये हो, मान लो, so this is 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पे भी देख मिथाइल, अगर ये देख इसमें लोकेशन लॉन्गेस्ट चेन क्या है? ये चेन है लॉन्गेस्ट, है ना? नाउ यू माइट इवन से कि ये भी तो चेन स्ट्रेट हो सकती है सर। हाँ, उसमें भी सेम हो जाएगा। मतलब I like to do one thing. You could try it. You could try it. Make मतलब use some threads, attach some carbon pieces to it, and then just make and stretch it out. You'll see कि it's the same structure. It's the same structure. Anyway. We'll do that experiment maybe in class. ये मैंने 3 साल से बोल रहा हूँ, कभी नहीं करते, but I'm just letting you know. ठीक है क्या? अरे भाई बोले पे कार्बन लिख देंगे, कार्बन कहाँ से लाएंगे? और तेरे तुझे ही बांध दूंगा, तू भी कार्बन है। एनीवेज, सो ये देखो, ये स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4, 1 2 3 4। नाउ इसमें सेकंड पे एक ये हटा देंगे तो सेकंड पे एक मिथाइल और थर्ड पे एक है। यू माइट से कि सर, हाँ यू माइट से कि सर यहाँ से सेकंड काउंट करते हैं और यहाँ से भी सेकंड काउंट कर सकते हैं, बट योर डायरेक्शनल काउंट शुड बी अ सिंगल काउंट। यू कैन नॉट काउंट फ्रॉम बोथ साइड्स इन द सेम नेम, कि मैंने इसी नाम में इस साइड से भी काउंट कर लिया, उस साइड से भी। नो नो नो, पिक अ डायरेक्शन, चूज अ साइड। So you have to choose a side, and then एक 2 पे है, एक 3 पे है, 2 मिथाइल है, तो क्या? Well, technically they are the same, but you'll always write 2, 3. Because technically you reach 2 first, then 3, but again it's the meaning the same, meaning the same. पीछे वाला कार्बन छुपा दे तो मतलब वो मिथाइल। हाँ, मतलब ये वाला छुपा देगी तो ये दोनों मिथाइल बचे ना। और लोकेशंस कहाँ है इनके? 2 and 3 पे। 2 and 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, लॉन्गेस्ट चेन इज ब्यूटेन। वही अगर मैं इसमें एक और कार्बन ऊपर ऐड कर दूं, 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम बताओ। ऑलवेज हैव पेशेंस व्हेन आंसरिंग माय क्वेश्चंस। अगर 2 साल में सीख नहीं पाए ना, सोचो फिर बोलो, सोचो फिर बोलो।
I never ask the question. दोबारा, I'll repeat myself. I never ask the question of the exact immediate before concept. First, look for the longest chain. Yes, this is the longest chain here. So any names with butane doesn't work. Let's stretch this out to see that this is 1, 2, 3, 4 and 5 and then कौन से के साथ linked है? Last इनके साथ. So this is 2,3 dimethyl pentane. This is not what you thought originally, that 2,3 ethyl methyl. नहीं मतलब why not? First rule, longest chain. First rule, nomenclature गलत है ना तेरा. तू कह रहा है अगर मिथाइल इथाइल है और ब्यूटेन है, मिथाइल प्लस इथाइल. हाँ, ऐसा डेफिनेटली हो सकता है. मैं कह रहा हूँ ये पॉसिबल है जो तूने कहा मिथाइल इथाइल. लेकिन जो तुम अगेन लुक फॉर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिसीव यू एंड एवरी टाइम विल बी डिसीव्ड. Every single time. So if you answer correctly, I will be impressed. Next, now we understand a little bit of, I'm just saying little bit of. You don't have to understand 100%. 100% है ही नहीं तुम्हारे कोर्स में पहली बार. But we will anyway be doing a little extra when we study IUPAC nomenclature. Next thing is कि अगर unsaturated हो तो उन्होंने unsaturated में ब्रांच नहीं दी है. आपके कोर्स में unsaturated में ब्रांच नहीं है. तो आपको बस क्या करना है, इन्होंने तो इनफैक्ट सबसे सिंपलेस्ट वंस दी है कि अगर ये हुआ तो दिस इज, इसका नाम क्या होगा? पहले वाले का बताओ. इथीन. नेक्स्ट प्रोपीन. सिंपल एज दैट. ठीक है, ये इथीन प्रोपीन. सर इथीन प्रोपीन में तो दिक्कत ही नहीं है, ब्रांच ही नहीं बन सकते. इथीन प्रोपीन में ब्रांच बन सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने एग्जांपल में दे दिया कि भाई हमारी जान छोड़ो, हम नहीं बता रहे. बट लेट्स से यू हैव समथिंग लाइक दिस. सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी. ठीक है. नाउ ऑब्वियसली रेस्ट ऑफ द प्लेसेस आर हाइड्रोजन फिल्ड. ठीक है. सो ये स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज नॉर्मली व्हाट? ब्यूटीन. तो इसमें हम लिखते हैं नाम इसका 2 ब्यूटीन या फिर ब्यूट. लोकेशन 1, लोकेशन 2. 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड. तो ब्यूट 2 ईन. तू बताना, शॉर्टेस्ट ही लेते हैं. वहां से भी 2 है, यहां से भी 2 है. तो वही तो कह रहा हूँ, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट नंबर. यू डोंट, मतलब अगर मैं ये दे दूं सी 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 डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी. ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा? हाँ, क्योंकि यहां से शॉर्टेस्ट है ना. विच इज इजंट इट लॉजिकल कि डबल बॉन्ड मुझे सेकंड दिख रहा है. मैंने तुम्हें कहा कि बेटा तुम्हें काउंट करना है. अंडरस्टैंड कि तू कह रहा है 2 और 3 के बीच में है. लोकेशन क्या है उसकी? जैसे मिथाइल को उसके नीचे रखा गया था ना, तो सेकंड के बाद है डबल बॉन्ड. इट्स सेइंग सेकंड के बाद है डबल बॉन्ड. दैट इज द लोकेशन एक्यूरेट. बट दिस इज हाउ यू नेम द unsaturated ones. You will never have a combination of branched and unsaturated. So you'll either have only branched or you'll have only saturated, unsaturated, sorry. So you'll never have a combination of both of them. And you might not realize right now, but it gets very complicated very soon. And also, there is something called functional group, जो कि हम eventually करेंगे. तो एक एटम हटा के फंक्शनल ग्रुप डाल देंगे तो उसके और आइसोमर बन जाएंगे. तो सोचो सैचुरेटेड विद फंक्शनल ग्रुप एंड ब्रांचिंग आउट, नो, इट्स जस्ट टू मच. So that's why it's constricted, syllabus restricted. Yeah, you can do a lot of stuff right now. क्या बता ना, वो केमिकल नेम मिथाइल तुझे दूंगा है बनाने करके दे. तेरा होमवर्क है, अगर नहीं बना के टैटू बनवा के आइए उसका. नहीं, अच्छा नहीं, मैं नेट से भेज दूंगा तुझे सोल्यूशन. मेरे को लिखना थोड़ी पड़ेगा, नालायक. अच्छा, you understand the names. ये उसका कॉमन नेम एसिटिलीन. तुम प्रोपाइल नहीं बोलो, तुम्हें कॉमन नेम जाने की जरूरत ही नहीं. बस देखना है. थिंग इज वही मैं कह रहा हूँ, कॉमन पीपल, कॉमन केमिस्ट, नॉट यू कॉमन पीपल. इट्स लाइक जो एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ रहा है वो बोल देना कि यार रॉकेट प्रोपल्शन क्या छोटी इजी पीजी चीज है, एंड एवरीवन इज लाइक
क्या? So it's easy for them, not for us. You have to understand chemistry is made from the point of view of वो जो करते हैं उनको कॉमन नेम दिया जा रहा है. हमारे लिए तो भाई केमिस्ट्री कॉमन नहीं है. हम में से कौन मतलब पानी पीते पीते H2O नहीं. We don't care. So yeah, no, we don't care. So that's the thing. कि मतलब these are common names for them, not so common. Just like common sense, not so common. I have not seen a lot of people with common sense. Then how the hell is it common sense? Anyways, I'm giving you the notes. You need to note this. मतलब you don't need to note this down. मैंने तुम्हें सब बता दिया है. तुम खुद लिखोगे बैठ के. Take 5 minutes and see how much